चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 क्या कहता है K for the reaction Fe3 plus H plus H2O F gives FeOH2 plus H3O plus is 6.5 to the power minus 3. What is the max pH value which could be used so that at least 80% of total iron 3 in a dilute solution exists as Fe3 plus? This is the equation. According to the question, it says that 80% of the total iron 3 in a dilute solution exists as Fe3 plus. तो अगर मैंने इसका x इनिशियल लिया था तो फाइनली इसका 80% बचना चाहिए और जो 20% है वो FeOH2 प्लस पे कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो K की वैल्यू आ जाएगी FeOH2 प्लस H प्लस अपॉन Fe3 प्लस इट विल बी 1/4 H प्लस तो ये मुझे दिया हुआ कितना 6.5 10 power minus 3 6.5 10 power minus 3 26 into 10 power minus 3 d और इसमें 26 तो ये h प्लस आई की कंसंट्रेशन आ जाएगी। अगर मैं माइनस ऑफ लॉग ऑफ h प्लस आई की कंसंट्रेशन करूंगा तो जो मेरा आंसर है वो आएगा 1.59 और ये मेरा आंसर होगा। So let's discuss the question number 12. So the question number 12 is quite a difficult one. Just listen, and I will going to break this question into some easier steps, so it will become easy for you to understand. Okay, so let's go through the solution. Just for a second, ignore this part. Ignore it. Just focus on the dissociation. Okay, FeOH twice dissociate into FeOH plus OH minus, and FeOH plus dissociate into Fe2 plus OH minus. That is Kb1 and Kb. What is the net? The net equation is going to be FeOH twice Fe2 plus 2OH. That's there is no problem in that. K equivalent will be Kb1 into Kb. So now what I'm going to do is K equivalent equals to Fe2 plus answer concentration OH minus the square on FeOH twice. Okay, Kb1 sorry, Kb2 equals to Fe2 plus OH minus FeOH. What is K equivalent on Kb2? It is going to be OH minus answer concentration Fe OH twice
FeOH. Now just think about the hydrolysis of Fe2 plus ions. What is going to be Fe2 plus H2O is FeOH plus H plus ion. If I am not wrong. What is KH? It is going to be Kw upon Kb. What is going to be the concentration of this? Alpha is going to be C into KH and sorry, H plus ions concentration is going to be C into KH and it is going to be C into Kw upon Kb. Okay. What is the concentration of Fe2 plus ions? So here I am going to need that equation. Okay. FeNO3 twice. What is FeNO3 twice? Gives out Fe2 plus 2NO3 minus ion. It is 0.1 mole. It is also 0.1 mole. It is going to come to initially it was 0.1 mole. So they are going to become 0.1 mole and 2 into 0.1. Okay, so I note the concentration. It is 0.1 into 10 to the power minus 14. And what is Kb I am going to take? Kb that I am going to take is going to be this equation. You are just able to see that it is just the reverse equation of the hydrolysis equation that I have written. So the Kb2 is given as 2.5 to 10 to the power minus 6. And into that 2.5 into 10 to the power minus 6, it is going to come out 1 by 25, 10 to the power minus 8. It is 10 to the power minus 4, 5. This is the concept of H plus ions. I think you will be well aware of 10 to the power minus 4 is going to concentration H plus ion into H minus ions. So what is the concentration of putting into the concentration of OH minus ion? It will be 5 into 10 to the power minus. Okay. So now, if I know all of these things, what I'm going to do, I'm going to get back to this equation. What is going to be the concentration of this? It is going to be C alpha. It's going to be C alpha. Oh, where is the, here it is. So I need to know the concentration of FeOH plus ions. So it is going to be C into alpha. And what is the concentration? Concentration is 0.1. What is alpha? Alpha is okay. This and this are going to be same. So this is also going to be FeOH plus ions concentration. Okay. So I'm going to get back to the K equivalent equation. It is K equivalent upon Kb2 concentration of FeOH plus
This is FeOH twice 5 into 10 to the power minus 4 is 4 5 from FeOH twice. What is K? KB1 into KB2. So it becomes KB1 KB2. Is the KB2 cut out, and what is KB1? KB1 is 10 to the power minus 4. 10 to the power minus 6, that is 10 to the power minus 4 FeOH twice. So FeOH twice come out to be 10 to the power minus. So basically what I have done over here is I have used this equation to avoid as many assumptions that is going to be taken in this question. I have done just like Fe2 प्लस की मैंने हाइड्रोलिसिस करवा दी, जिससे मुझे FeOH प्लस और H प्लस आयंस मिल गए, जो कि ओरिजिनल इस वाले डिसोसिएशन में प्रेजेंट थे। तो जितने ये FeOH प्लस आयन जो है वो Fe2 प्लस और OH माइनस आयन बनाने के लिए जो डिसोसिएट होने पर OH माइनस आयन दे रहे हैं, अगर मैं उनका हाइड्रोलिसिस कर दूं और मुझे पता चल जाए वो कितना H प्लस आयन देते हैं, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा वो डिसोसिएशन कितना OH माइनस आयन देगा। ये याद रखना। Let's move on to the next question. What it says, how many gram of solid KOH must be added to 100 ml of buffer solution to make pH of solution 6.2 if it is 0.1 mole each with respect to acid HA and salt Ka. So you have to decode this line. What is this line is saying to you? लाइन तुमको क्या बता रही है? लाइन तुमको ये बता रही है कि इनिशियली जो है इस हर एक कंपोनेंट के 0.1 मोल 0.1 मोल 0.1 मोल प्रेजेंट है। उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ऐसे बोलता है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ QH मस्ट बी एडेड टू 100 ml ऑफ बफर। तो मैं बोलता हूँ मैं x मोल डाल रहा हूँ, x अपॉन 100, भाई x अपॉन 100 जो होगा, तो क्या कर रहा हूँ मैं इसके अंदर बफर सोल्यूशन के अंदर कुछ मोल्स ऑफ दिस डाल रहा हूँ, x मोल डाल रहा हूँ, तो मुझे यहाँ तो मोलैरिटी लिखनी होगी, तो x अपॉन 100 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा इतना। इनिशियली हम इतना बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, इतना ही दोनों साइड से कम हो जाएगा और इधर साइड इतना बढ़ जाएगा। हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, pK प्लस लॉग सॉल्ट ऑन एसिड। pK की वैल्यू कितनी है, pK दिया 5, pH बोलना है हमें 6 चाहिए, प्लस लॉग ऑफ 0.1 plus 10x on 0.1 minus. So it will going to be 10 equals to 0.1 plus 10x on 0.1 minus 10x. It will be 1 minus 100x equals to 0.1 plus 10x. It will be 0.9 110x. So it will be 9 upon 1 because this is the moles that is going to be added in the mass of KOH. If you multiply it with the molar mass of KOH, that is going to be answer. So let's move on to the question number 14. What question number 14 says, which volume of 0.1 molar of benzoic acid pK वैल्यू मुझे देख रखी है, solution added to 0.2 molar sodium benzoate
solution formed 300 ml blended acidic buffer solution. If pH of this buffer solution 4.5, then find the added volume of benzoic acid. Okay, so 300 ml मेरा टोटल बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोइट दोनों मिला के इतना है, तो मैं बोल देता हूँ भाई बेंजोइक एसिड मेरा V1 है और सोडियम बेंजोइट मेरा V2 है, तो ये कितना सी चाहिए, और ये है तुम्हारा C6H5C डबल बॉन्ड मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ और उसका बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करूँ तो ये जाएगा, ये हो जाए बेंज ये हो जाएगा सोडियम बेंजोएट और निकल जाएगा पानी, ये हो जाएगा 0.1 मोलर इनिशियल था, तो मैं इसके वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई करूंगा और 300 ml जो से नया बना है उसके बराबर मैं रख दूंगा। ठीक, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.2 इंटू V2 अपॉन 300 ml हो जाएगा। पीएच का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये नई मोलैरिटीज हैं, मोलैरिटी इनिशियल मोलैरिटी 0.1 थी, 0.1 थी और 0.2 थी, और जो फाइनल मोलैरिटी 0.1 इंटू V1 इंटू 300। अरे इतनी समझते ही हो गए कि अगर 0.1 जो मोलैरिटी है उसको वॉल्यूम से इंटू कर दिया जाए तो मोल्स आ जाते हैं, और मोल्स को नए वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए तो नई मोलैरिटी आ जाती है। वही मैंने यूज किया। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला है pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ऑन एसिड। सॉल्ट क्या है, ये एसिड क्या है, ये पीके वैल्यू मुझे कितनी देख रखी हुई है, पीके वैल्यू मुझे देख रखी हुई है 4.2, पीएच मुझे देख रखा हुआ है 4.5। yes now I'm going to get over here is 0.2 into V2 upon 0.1 into V1, it is going to be 0.3 log 0.2 V2 on V1, it is 0.2, what is 0.2 equals to 2 V2 upon V1, V1 equals to V2, तो इसका मतलब V1 की वैल्यू कितनी थी 115, V1 प्लस V2 कितना था 300, तो ये कितना है, ये तुम्हारा आंसर, तो तुम्हारा आंसर। So let's go to this question. What the question is as 1.025 gram 1.025 gram sample containing a weak acid H6 molar mass दिया हुआ है 82, जो डिजोल्व किया गया 60 ml पानी में, और उसको टाइट्रेट किया जा रहा है 0.25 ml NaOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट। जब हाफ ऑफ द एसिड जब न्यूट्रलाइज हो जाता है तो पीएच जो होता है वो 5 दिखाई देता है और इक्वलेंस पॉइंट ऑफ पीएच 9 दिखाई देता है। कैलकुलेट मास परसेंटेज H6 सैंपल। मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, तो क्योंकि मैं सोच रहा था कौन सा सबसे बेस्ट तरीका होगा इसको एक्सप्लेन करने का, तो तो देखिए मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब हाफ एसिड जब न्यूट्रलाइज होगा, जब हाफ एसिड न्यूट्रलाइज होगा होगा तो पीएच कितना होगा, पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ऑन एसिड, यही होता है ना। अब सॉल्ट एसिड या एसिड बराबर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जब आधा एसिड न्यूट्रलाइज हो गया तो आधा एसिड बचा, आधा बेस आधा सॉल्ट बन गया, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो पीएच पीके बराबर पीके की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक, इसको वापस से एक्सप्लेन करिए। ये
तो जब इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या हुआ कि क्या होगा कि जो पीएच है, पहली बात OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, इतना तो पता हो गई। ठीक, और पीएच हो जाएगा, पीएच तो पीके प्लस लॉग पीएच विल बी 7 प्लस हाफ पीके प्लस लॉग। तो pH equals 7 plus half 5 plus log C, इसकी वैल्यू 9, 7 plus half 5 plus log C, and what will be the value of C? It will be going to be 0.1. I am going to calculate it. It is going to minus 1 equals to log C. Alright. So be yes. Okay. So now at this point, what I am going to say that 0.1 mole of HX. So if you read question carefully, what is it saying? ये कह रहा है 1.025 ग्राम सैंपल जिसमें वीक एसिड HX है, उसको डिजोल्व किया 60 ml पानी में। तो मैं ये कहूंगा ना कि इसका V मोल और इसका 60 ml पानी में डिजोल्व किया गया है और उसको टाइट्रेट किया जा रहा है 0.25 ml ऑफ NaOH के अगेंस्ट। ठीक, तो इसका V और इसका V और इसका V मतलब इसके वी वॉल्यूम ये लगा है, इसके वी वॉल्यूम को यूटिलाइज करने में लगा होगा। ठीक, लेकिन ये 60 ml एक्स्ट्रा पानी भी तो है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंस पॉइंट में जहाँ पे H प्लस और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बराबर होगी, वहां पे वी मोल कितना आएगा, वी वॉल्यूम कितना आएगा, वो आएगा 0.1 इंटू वी प्लस 60, ये एसिड का, ये वाटर। और OH माइनस आयन कितना दिया हुआ है मुझे, OH माइनस आयन में 0.25 दिया हुआ है, 0.25 इंटू वी। ठीक, कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 40 ml। ठीक, ओके। सो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ जाएगी 40 और 0.1 इंटू। ठीक, तो ये कंसंट्रेशन आ जाएगी H प्लस आयन से, और जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन आएगी वही HX, जो एसिड होगा उसकी कंसंट्रेशन भी उतनी ही होगी। अब मुझे मोलर मास ऑफ एसिड मुझे पता है, वो है 82, 82 है। तो 0.1 इंटू 100 इंटू 82 डिवाइड बाय 1.025। तो मुझे फाइनली क्या पूछा था, मुझे कैलकुलेट मास में HX इन सैंपल, तो सैंपल में कुछ एसिड था, कुछ इम्प्योरिटी थी। तो ये ओरिजिनल मास ऑफ द सैंपल है, ये HX का मास है, ये मास परसेंटेज आ जाएगा, कितना आएगा। हाँ, तो कैलकुलेट करूँ तो 10 इंटू 82 1.025 200 5 5 to the 10 25 5 to the 10 0 5 5 50 5 to the 20 81 it is 2, it is going to be 80%. Okay, um see that item now I have to divide it with 1,000 also and multiply with 1,000. So this will put like this. हाँ, एक 10 हो गया, तो ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 80%। क्योंकि ये मैंने मिलियन में दी है, तो इसको नॉर्मल मोस्ट 1000 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी। ठीक,
तो मैंने इस क्वेश्चन कुछ नहीं किया, सिंपल सिंपल से मैंने बस रखी है। अगर जब हाफ एसिड न्यूट्रलाइज होगा तो वो बफर सॉल्यूशन ही रहेगा। इक्विवेलेंस पॉइंट पे उसकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। उससे मुझे सी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स माइनस आयंस पता चल जाएंगे। एनायनिक पार्टी कंसंट्रेशन होती है ना ये, एनायनिक पार्टी कंसंट्रेशन पता चल गई, तो मुझे एच प्लस आयन कंसंट्रेशन पता चल गई, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन पता चल गई। तो मुझे बस ये पता करना था कि जो एच एक्स है वो कितना वॉल्यूम डाला गया है। तो वॉल्यूम प्लस 60, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके मैंने इसके मोल्स निकाल लिए, इसके मोल्स को इसके मोल्स के इक्वल कर दिया, मुझे मेरा आंसर मिल गया वी 40 ml। इसको मैंने टोटल कर दिया 40 + 60, तो बस यही मेरा आंसर है। बस